Students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic, that is life cycle of Plasmodium. Life cycle of Plasmodium means malaria parasite. Okay, you know malaria is caused by Plasmodium protozoa, and you also know Plasmodium is digenetic parasite. It means life cycle completes in two hosts, primary and secondary. Primary host is mosquito, secondary host human. Mosquito is primary host because in mosquito body sexual reproduction of Plasmodium completes, and in human body asexual reproduction occurs. Okay, life cycle of Plasmodium completes in mainly three stages. There are mainly three stages of life cycle of Plasmodium. Okay, first schizogony, second gymogony, and third sporogony. These are the three stages of life cycle of Plasmodium. Schizogony means asexual, occurs in human body. Gymogony and sporogony occurs in mosquito body. Okay, one is schizogony in human, gymogony and sporogony in mosquito body. When female anopheles mosquito bites, during biting, before the sucking of blood, mosquito secretes discharge saliva in human body. ठीक है, ब्लड सक करने के पहले मस्किटो बॉडी में सलाइवा का सिक्रेशन करता है. With the help of saliva, numerous Plasmodium in the form of sporozoites enters in our body. Okay, during secretion of saliva, mosquito also secretes a local sedative and anticoagulant material that is called anophyllin. Clear? After that, Plasmodium enters in liver cell and multiply there. वो लिवर सेल में जाएगा, लिवर सेल में मल्टीप्लाई करता है. जैसे जैसे लिवर सेल में उसका नंबर बढ़ते जाएगा, लिवर सेल ब्रस्ट करेगा. लिवर सेल ब्रस्ट करेगा, उसमें से फिर कुछ लिवर सेल में इंटर करेगा और फिर कुछ आरबीसी में इंटर करेगा. Okay, it means schizogony also completes in different stages. Schizogony also completes in different stages. First stage of life cycle is schizogony. Completes in different stages. Such as फर्स्ट की बात अगर हम करें, फर्स्ट स्टेज इनोकुलेशन means entry of Plasmodium in human body. Okay, inoculation means entry of Plasmodium in human.
सेकेंड प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, नेक्स्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, देन इरिथ्रोसाइटिक, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, एंड नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन. These are the different stages of schizogony occurs in human body. First, inoculation means mosquito secretes saliva in human body. In saliva, a sporozoite and anticoagulant local sedative chemicals एनोफिलीन आर प्रेजेंट. सलाइवा में क्या होगा तो स्पोरोजोइट है और एंटीकोगुलेंट लोकल सीडेटिव केमिकल. लोकल सीडेटिव कुछ जहां वो काटता है उस एरिया को कुछ देर के लिए सेंसेशन लॉस्ट कर देता है. सो इट इज कॉल्ड लोकल सीडेटिव केमिकल, दैट इज एनोफिलीन. और एनोफिलीन का काम क्या है कि जैसे ही वो सलाइवा को बॉडी में डाला उसके बाद वो ब्लड सक करेगा तो ब्लड वह उसके प्रोसेस में क्लॉट न करे, इसके लिए एनोफिलीन केमिकल को डाल दिया. क्लियर. अब देखिए यहां के बाद प्री इरिथ्रोसाइटिक मीन्स इरिथ्रोसाइटिक के पहले का स्टेज. प्री इरिथ्रोसाइटिक मीन्स स्टेजेस अकर्स इन आरबीसी. इरिथ्रोसाइट तो आरबीसी के पहले का स्टेज. एक्सो इरिथ्रोसाइट उसके बाहर हो रहा है. पॉसिबिलिटी है कि आरबीसी में हो सकता है लेकिन हो रहा है बाहर. इरिथ्रोसाइटिक आरबीसी में कंप्लीट होगा और पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद का स्टेज यानी इरिथ्रोसाइट आरबीसी से निकलने के बाद प्लाज्मोडियम का स्टेज. अब देखिए फर्स्ट हो गया इनोकुलेशन. सेकंड में आइए. सेकंड इज प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. आफ्टर इनोकुलेशन विद इन हाफ एन आवर sporozoite reach in liver cells, enter in liver cell. Means after inoculation within half an hour a sporozoite reach in liver cell. Suppose that this is liver cell and this is a sporozoite. अब जैसे ही लीवर सेल्स में जाता है तो सबसे पहले राउंड हो जाता है एंड इट मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल फिजन. और जब मल्टीपल फिजन होगा तो न्यूमरस प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा. दिस लाइक. ठीक है ना. एंड दीज आर कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट्स. जैसे ही स्पोरोजॉइट्स का मल्टीपल फिजन होता है तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा और उसका नाम देंगे हम क्रिप्टोमीरोजॉइट या क्रिप्टोजॉइट का नाम दीजिए क्रिप्टोजॉइट. एंड ड्यू टू न्यूमरस नंबर ऑफ क्रिप्टोजॉइट्स इन ए लीवर सेल के अंदर बहुत सारा क्रिप्टोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो गया. रिजल्ट क्या होगा? लीवर सेल ब्रस्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट क्रिप्टोजॉइट releases out from the
liver cells. Okay. Now cryptozoites or cryptomerozoites again enters in liver cell and converted into a feeding stage. लीवर सेल में कन्वर्ट जा करके फिर से एक फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट करेगा. नाम देंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स. इसका क्रिप्टोजॉइट्स कर सकते हैं, क्रिप्टोमेरोजॉइट्स कर सकते हैं. अब देखिए दिस अगेन इंटर्स इन लीवर सेल. फिर से यह लीवर सेल में इंटर कर गया, फिर से लीवर सेल में इंटर किया, और जैसे ही यहां लीवर सेल में इंटर किया इस यहां बनेगा एक फीडिंग स्टेज. फीडिंग स्टेज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट. Metacriptomerozoites. That is feeding stage that takes nutrients from liver cells and grow. Okay, and it divides by multiple fission and forms two types of sporozoite. अब ये डिवाइड करेगा. देखो अब डिवाइड करेगा तो क्या बनता है ध्यान दीजिए. मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स, मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स divides and produce two types of structures. One is called macrometacryptomerozoite and other is micrometacryptomerozoite. Micrometacryptomerozoites. Generally, number of macrometacryptomerozoite is 64. इसका नंबर 64 होता है, जबकि माइक्रो का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, वह 1000 तक हो सकता है. मीन्स 800 to 1000. अब देखिए जैसे ही लीवर सेल के अंदर माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स और माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होगा, रिजल्ट क्या होगा, लीवर सेल्स फिर ये ब्रस्ट करेगा. ठीक है ना. अब ब्रस्ट करने के बाद दोनों निकलेगा बाहर, दो तरह का बनाना. दिस अगेन एंटर्स इन liver cell. Macrometacryptozoites again enters in liver cell and micrometacryptomerozoites enters in RBC. ठीक है, चलिए ध्यान देखें. Macrometacryptomerozoites enters in liver cell again and this is enters in RBC. अब देखिए यहां तक का जो प्रोसेस, पहला जो स्टेज हुआ जहां की क्रिप्टोमेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हुआ, डेट इज कॉल्ड प्री इरिथ्रोसाइटिक. वहां से वह आरबीसी में भी इंटर कर सकता है. कुछ आरबीसी में पॉसिबिलिटी है, कुछ आरबीसी में चला जाएगा और फिर कुछ लिवर सेल्स में जाएगा. और जब लिवर सेल में जाए बना गया तो बना मैक्रो और माइक्रो. ठीक है. अब देखिए ये जो स्टेज कहलाएगा, ये कहलाएगा इरिथ्रोसाइटिक. नेक्स्ट इज इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. अब इसके बाद का स्टेज कौन है, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. इट मीन्स माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स. माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइट्स और क्रिप्टोजॉइट्स में भी enters in RBC and starts erythrocytic cytopenia. कौन कौन, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट और क्रिप्टोमेरोजॉइट, बोथ में भी. क्रिप्टोमेरोजॉइट enters in RBC and starts erythrocytic stage या erythrocytic साइजोगोनी. इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी स्टार्ट करेगा.
इन आरबीसी cryptomyrozoites, micro cryptomyrozoites passes through different stages. In RBC, cryptozoites gets converted into feeding stage called trophozoite. Trophozoite is feeding stage of plasmodium in RBC. RBC का फीडिंग स्टेज है ट्रोफोजॉइट। तो जो RBC में सबसे पहले एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ट्रोफोजॉइट होगा। ट्रोफोजॉइट से कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्वाइड स्टेज में। डिस्क्वाइड स्टेज मतलब जो न्यूक्लियस होता है प्लेट लाइक होता है। नेक्स्ट सिग्नेट रिंग स्टेज, नेक्स्ट इज सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज। देन अमीबॉइड स्टेज, अमीबॉइड स्टेज। इन अमीबॉइड स्टेज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अमीबॉइड स्टेज के साइटोप्लाज्म में एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, that is called Schaffner granules, that is called Schaffner granules. This is the characteristic features of amoeboid stage. After that, nucleus divide, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 है ना, इस एंड लास्टली फॉर्म 64 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 64 न्यूक्लियाई, सॉरी 64 नॉट 1 2 2 24 न्यूक्लियाई की बात करें। एंड दीज न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन ए रोज लाइक स्ट्रक्चर, पेटल्स ऑफ रोज, गुलाब की पंखुड़ी की तरह अरेंज हो जाता है और वह फॉर्मेशन करता है रोजेटी स्ट्रक्चर या रोजेटी स्टेज, ठीक है ना। तो सबसे पहला अमीबॉइड हो गया, अमीबॉइड से रोजेटी स्टेज का फॉर्मेशन होगा, रोज लाइक अपीयरेंस होगा न्यूक्लियस का, किसका, न्यूक्लियस का, और यहां जाकर के क्या होता है, आरबीसी को ब्रेक कर देता है। दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज अकर्स इन आरबीसी। अब देखिए, ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी ब्रेक किया ना, अगर यह आरबीसी ब्रेक किया है तो क्रिप्टोजॉइट्स एंड ए टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोज्वाइन releases from blood, releases from RBC and mixes in blood, ठीक है ना, ब्लड में जाकर के मिक्स हुआ, और जैसे ही ब्लड में हीमोज्वाइन का सिक्रीशन होगा तो फीवर अपीयर होगा। मीन्स फर्स्ट सिम्टम्स, इसके पहले बॉडी में प्लाज्मोडियम था लेकिन कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ। जब इतने साइकिल से होकर गुजरा, यहां हीमोज्वाइन सिक्रीट किया, तभी पहला सिम्टम्स आएगा। इसके बाद कुछ फिर से लीवर सेल्स में गया है, वह लीवर सेल से निकलेगा, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा और आरबीसी में फिर हीमोज्वाइन प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही हीमोज्वाइन प्रोड्यूस किया
फिर फीवर आ गया। तो जो मैं टाइप्स बताया हूं मैं अलग अलग प्लाज्मोडियम स्पेसीज का, जिसमें कि 72 आवर्स 48 आवर्स के बाद फीवर आ रहा है, इट मीन्स इन 72 आवर्स इन 48 आवर्स दीज साइकिल्स कंप्लीट्स इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक। यह जो स्टेज बनेगा यानी कि ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रोसेट का स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिप्टोमेरोजॉइट और हिमोजॉइन का फॉर्मेशन करेगा। नाउ दीज क्रिप्टोजॉइट्स और क्रिप्टोमेरोजॉइट्स अगेन इंटर्स इन आरबीसी एंड लीवर सेल्स। यहां से फिर ये इंटर कर जाएगा कहां? आरबीसी एंड लीवर सेल। In liver cell, this stage of plasmodium present in inactive form called hypnozoites. In liver cell, it is present in inactive stage hypnozoite। किस स्टेज में? hypnozoites and it is responsible for relapse of malaria। कुछ दिनों तक मलेरिया ठीक हो गया, फिर से मलेरिया आ गया, जो कि यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, वह एक्टिव होकर के फिर से मलेरिया काउज करेगा। और एक और यहाँ बात है कि मलेरिया का पेशेंट जो होता है तो उनको जो मेडिसिन का कोर्स होता है, डोज होता है, वो रेगुलर मिलना चाहिए। आप मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हैं, एक दिन किसी कारण से मेडिसिन आपने नहीं लिया और जिस दिन आपने मेडिसिन नहीं लिया उसी दिन लीवर सेल से निकला और आरबीसी में इंटर कर गया, बाद में आप दवा खाते रहे, उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जो कंटिन्यू मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे ही लीवर सेल से निकला, ब्लड में आया, ब्लड से आरबीसी में एंटर करना है, उसके पहले वो डाई कर जाएगा। तो जो भी कोर्स है रेगुलर रूप में मेडिसिन का यूज करना चाहिए, इसमें इरेगुलर कभी नहीं होना चाहिए, मेडिसिन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ जो आरबीसी में क्रिप्टोमेरोजॉइट्स एंटर किया, आरबीसी के अंदर यही क्रिप्टोमेरोजॉइट्स गैमेटोगोनी या गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, गैमोगोनी या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जाने पहले आप, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आफ्टर few generation of erythrocytic zygogony। erythrocytic that completes in RBC merozoite develops into microgametocyte and macrogametocyte। It develops into female gamete and it develops into male gametes। And in this condition, when any mosquito suck the blood of patient, then male gametocyte, female gametocyte, cryptomerozoites, metacryptomerozoites, these are enters in mosquito body। अब जो बॉडी का लाइफ साइकिल का जो आएगा प्रोसेस होगा, अब होगा मस्क्यूटो बॉडी में। इन मस्क्यूटो बॉडी all stages except gametocite
all stages are digested in midgut of mosquito। सिर्फ गैमेटोसाइट बचेगा, सारा का बाकी सारा का सारा स्टेज क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब जो बचा ये क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। गैमीट्स फर्टिलाइज करेगा, बनाएगा क्या, जायगोट। अब ध्यान दीजिए, अभी तक का जो भी स्टेज था जो ह्यूमन, ओके नाउ सी, गैमीट फर्टिलाइज एंड फॉर्म जायगोट, जायगोट डेवलप्स इनटू ookinete, जायगोट डेवलप्स इनटू ookinete, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ookinete अकर्स इन द गट। मान लिया ये है गट, एलिमेंट्री कैनाल, मिड गट, और मिड गट के अंदर ही ये सारा प्रोसेस हो रहा था। अब यहां बन गया ookinete, these are ookinete, okay, and this is the wall of elementary canal। ookinete penetrates in the wall of gut and comes outside the wall। अब यहां से इस बाल को पार करके गट के बाहर आ गया, और यहां अब इसका नाम हो गया oocyst। दिस इज कॉल्ड oocyst। अब देखिए, इन मस्क्यूटो open types of circulatory system are present, it means around the alimentary canal body fluid or hemolymph is present। This cavity is called hemocoel। It means oocyst comes in contact of hemocoel। oocyst is a structure covered by cyst, okay, and after that ookinete से बन गया क्या, oocyst। oocyst is diploid structure, क्योंकि कहां से फॉर्मेशन हुआ, जायगोट से। इट डिवाइड्स बाय मियोसिस सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस एंड रिपीटेड माइटोसिस। कई बार माइटोसिस होता है, रिजल्ट क्या होता है, न्यूमरस स्पोरोजॉइट आर फॉर्म्ड। अब यह जो स्पोरोजॉइट बना कहां बना, हेमोसील में, बॉडी कैविटी में, एंड विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम हेमोसील a sporozoite comes in contact of salivary gland and enters in salivary gland। अब यहां से स्पोरोजॉइट कहां चला गया, स्पोरोजॉइट enters in salivary gland and passes in new host। फिर से यह होस्ट बॉडी में जाएगा, ह्यूमन बॉडी में जाएगा, और यह साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्लियर। ऐसे इसमें कुछ सिर्फ स्टेज याद रखेंगे, कहां कहां, सफनर डॉट्स, अमीबॉइड, सिग्नेट रिंग स्टेज, आरबीसी का जो स्टेज है, हीमोजॉइन केमिकल का नाम याद रखेंगे, क्रिप्टोमिरोजॉइड्स, मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइड्स, मिरोजॉइड्स, ये सभी इंटरमिक्स टर्म है। कहीं भी किसी का यूज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसको नाम याद रखने की भी विशेष जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ओके।